आप घर से बाहर, ओके, नो प्रॉब्लम, दोज हु कैन. Yes, everybody. So, how many of you did the magic rock practice? Say I in the chat. How many of you done the magic rock practice? Yes, Riti madam, you did. How you felt about it? आप में से किन्होंने किया है and how you felt after doing the magic rock practice? So, yesterday I showed you that I also got one and I also did the practice last night. So, how you felt? Namrata ji, you did. Surbi madam, did you? Yes. Feeling very good and amazing. Yes, I did felt very nice. Reena ji, yes. Okay. It's feeling good in morning. Okay. So it did in the night and it makes you feel good in the morning. So why I ask is because through the sharings we will be learning more and more. So what happens is, मान लीजिए there are 8 people in the room who are the practitioners and they share their experience. So other people who didn't got the experience or who didn't feel the practice yet, they will be motivated and they'll be okay, this also happens, so they'll be motivated towards it. Yes, so it will add value to each other's life. So today is a very important lesson, and that is the magical relationships. How many of you want to heal your relationships you having currently? It could be your mother, it could be your father, brother, friend, husband, wife, kids, any relation on the planet. Now let me please tell me in the chat like which relation you want to cure. Yes. Me relationship getting improve, okay. Very first day on 5/8. Okay. 5/5 of. Right, great. So let's start with the today's practice. That is the magical relationship, right? So today attendance is little low. So I was waiting for more people to join. Now it's okay. We have our reader Surbi madam with us. So yes, Surbi madam, let me give you that permission to unmute once again. Yeah. So everybody, let's start with the today's practice. Yeah. Now you should be. Yeah. Yes, yes. Should I start? Yeah, yeah. Please go ahead. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. You would be the point in creating a painting if no one could see it. What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure, no joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else.
To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most. Yeah, Hmm, powerful channels. हाँ जी. How they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Okay. So what it says is that अगर मान लीजिए you're only the person on the planet, आप सिर्फ अकेले व्यक्ति हैं पूरे पृथ्वी पे, तो will you be having any desire to do anything or for anybody? Yes, no, maybe. Absolutely no. If you are only the person on the planet, so there is no point in doing anything. आपने अगर कोई म्यूजिक कंपोज किया उसको कोई सुनने वाला नहीं, कोई पेंटिंग बनाई उसको कोई खरीदने वाला नहीं. सो अगर आज हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव. सो दिस सेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशंस इन द लाइफ, कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वी वॉन्ट टू डू इट बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड अस. यस. तो हमारे जितने भी रिलेशंस हैं दे आर वेरी वेरी प्रीशियस टू अस. सबसे ज्यादा कंप्लेन्स, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिलेशन में क्या होता है? आपकी कंप्लेन्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर मे बी कुछ अगर नहीं बनी तो आपस में टकरार भी होती है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. कोई भी रिलेशन अच्छे नोट से शुरू होके एंड आफ्टर सम टाइम अगर हम उसकी केयर नहीं करते, हम उसकी परवाह नहीं करते, तो इट गोज अदर वे. तो आज हमने ये समझना है कि अगर किसी चीज की जरूरत भी है, यस, तो हम क्यों कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं. देखिए, कई लोगों का जो पर्पस होता है ना, वो अपने घर, अपने परिवार, अपने सराउंडिंग तक रहता है. कई लोग जो बहुत महान हुए, सेलिब्रिटीज या फिर बहुत रिवोल्यूशनरी लोग हुए, उनका पर्पस जाके लोगों में स्कैटर्ड हो जाता है. वो देश का कल्याण या जन कल्याण या विश्व कल्याण करना चाहते हैं. तो हम, लेकिन हम जो भी करते हैं, अच्छा बुरा, या हम जो पाना चाहते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड अस. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट देम एंड वी नीड टू understand the importance of the every single relation we have in our life. Yes. Now, yeah, please read it from sciences. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research studies is that for every one complained about another person, whether in thought or words, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Yes. Any less than 10 blessings for every complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Now what happens is, आजकल अगर आप देखिए, why divorce cases are increasing, because they don't have gratitude for each other after a certain time. So एक को लगता है उसने ज्यादा किया, दूसरे को लगता है उसने ज्यादा किया. तो जब दोनों को लगता है कि इसने ज्यादा किया, उसने, तो देयर इज नो फीलिंग ऑफ gratitude between them. And this is the primary reason that why people, they are not having the sustainable marriages nowadays, right? I'm just, even those who have it, they are also like, किसी का चल रहा है, किसी का कैसा चल रहा है. तो we need to understand that if you see here, it is written that probably the most astounding static that has come out of the research is that everyone complained about another person. अगर आप किसी के लिए एक कंप्लेन करते हैं, तो कम से कम उसको 10 ब्लेसिंग्स दीजिए. अब आप सोचिए आपने कितनी कंप्लेन किस रिलेशन में की हुई है.
आज अगर आपका रिलेशन किसी जगह पे है कि इट इज नॉट वर्किंग, हम कहते हैं ना दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग नाउ, तो इफ इट इज नॉट वर्किंग नाउ बिकॉज ऑफ द कंप्लेन्स यू हैव मेड इन द पास्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंप्लेन्स यू हैव मेड इन द पास्ट। तो अगर आपने अपने रिलेशंस को हील करना है, तो अगर आपने एक कंप्लेन करी, इफ यू हैव मेड द वन कंप्लेन, जस्ट सिंगल कंप्लेन, एटलीस्ट गिव देम द 10 blessings to for that to settle out. How many of you want to heal your relation, and which relation you would like to heal? Can you put it in the chat? Yeah, maybe husband, brother, which one relation is that there which you want to heal? Let me know in the chat, guys. Friend Roshi, you want to heal your relation with your friend. Riti madam, you with your best friend. Yeah, we'll look at it. Yes, Surbi madam with your manager, friends, okay. So there is one or two relationships which we want to heal. अगर आज वो इस स्टेज पे आ गया जहाँ पे आपने उसको हील करना पड़ रहा है, या आप उसमें वो फीलिंग नहीं ला पा रहे हैं जो पहले थी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंप्लेन्स यू हैव मेड। मे बी यू हैव टेकन द रिलेशंस फॉर ग्रांटेड, और आपने जो आपकी तरफ से इनपुट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो अभी लेखक कहती हैं कि आपने एक अगर कंप्लेन की है तो उसके अगेंस्ट में आपने 10 ब्लेसिंग्स देनी है। अगर आप उससे कम ब्लेसिंग्स देते हैं तो इस तरीके के रिलेशंस दे आर मोर लाइकली टू डिटोरिएट, और अगर मैरिजेस हैं तो दे आर मोर लाइकली टू एंड इन टू द डिवोर्स। दिस ग्रैटिट्यूड मेक्स। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And तो gratitude, Hanji. तो अभी क्या कह रही है लेखिका कि एज यू इंक्रीज द ग्रैटिट्यूड फॉर एनी रिलेशन यू विल मैजिकली रिसीव एन abundance of happiness and good things. So if you want to, suppose somebody said that he want to heal the relationship with the boss, so you need to pay the gratitude to your boss. क्यों ग्रैटिट्यूड देना? देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स, उन्होंने आपको जॉब दी, उस जॉब की वजह से आपका लाइवलीहुड, आपके लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस मीट आउट होते हैं बिकॉज ही ट्रस्टेड यू, और ही हैज गिवन यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही थॉट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सो एंड सो। तो जब आप उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट रिलेशनशिप, आप देखेंगे कि सडनली दैट टसल बिटवीन यू एंड दैट पर्सन starts dissolving, and the more happiness and good things in that relationship will start coming out, right? So if you want to heal any relationship, the only thing is increase your gratitude. Yes, what to do is increase your gratitude. Yes, हम अभी practices करेंगे, but the thing you need to underline and just write it as bullet point is increase your gratitude. ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। And gratitude for your relationships. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. Yes, so what it means is when you start giving gratitude in the relation, आप भी बदलते हैं। You won't be the same person who was complaining. या तो आप कंप्लेन करेंगे या फिर ग्रैटिट्यूड के थ्रू उस रिलेशन में यू विल क्रिएट द मैजिक। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती कि कंप्लेन भी कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि
आप अभी जिस तरीके के इंसान है, या फिर द काइंड ऑफ पर्सन यू आर करेंटली, व्हेन यू स्टार्ट पेइंग द ग्रैटिट्यूड, यू आर मोर काइंड, यू आर मोर हम्बल। आप उस चीज की इम्पोर्टेंस समझ के दूसरे को भी उसी सम्मान से, उसी रिस्पेक्ट से, उसी काइंडनेस से, उसी कंपैशन से एक्सेप्ट करते हैं। एंड देन व्हेन यू एज अ पर्सन चेंज, योर रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन, और वो जो प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ XYZ इश्यूज, और आपका टेम्परामेंट, या आपकी और भी कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से जो इश्यूज हैं, दे विल स्टार्ट डिसॉल्विंग। तो आप भी जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब आप चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझते हैं, आई हैव सीन मैनी पीपल, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर, लाइक जब वो जॉब में होते हैं, दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द जॉब। दिस इज मोस्ट कॉमन, ऑल द जॉब पीपल दे कैन रिलेटेड टू। क्योंकि जब आप जॉब में होते हैं ना, तब आप कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, हमें काम ज़्यादा मिल गया, या हमारी टाइमिंग्स ज़्यादा कर दी, या फिर बॉस हमारी हमारी सैलरी कम है, या दूसरे जॉब से कंपेयर करके, है ना, ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगता है। बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं जॉब में, अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से, अपने बॉस से, अपने आप से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। तो जब क्या होता है, आप कुछ समय तक उस कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं, काम करते रहते हो, और एट दी एंड आप देखेंगे कि आपको उसमें ग्रोथ भी नहीं मिल रही, आपका डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है, और थोड़े समय के बाद जाके वो उस एक पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे यू डिसाइड ऑफ क्विटिंग द जॉब एंड लेट्स स्विच टू अनदर जॉब। फिर वही श्रृंखला, वही चीजें आप दूसरी जॉब में भी करते हैं, एंड देन you must have seen a lot of people who keep on switching the new job and never satisfied with the one। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अगर आप किसी, देखिए, स्वर्ग है या नरक है, ये हम अपने ही खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। इंसान का जो भाग्य है, वो हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। ना कोई हमारा भाग्य बना सकता है, ना कोई बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे को फल मिलता जा रहा है। अगर हमने इस जन्म में नहीं किया तो हमने पूर्व जन्मों में किया होगा, लेकिन आज जो भी हमारे सामने, वो हमारे ही अपने कर्मों का फल है। वी आर द कॉज। तो अब जब आप अपना ग्रैटिट्यूड में अपने ब्लेसिंग्स देते हैं, तो दुआएं, ब्लेसिंग्स मतलब दुआएं देना, जब आप दुआएं देते हैं तो आप अच्छा कर्मा कर रहे हैं ना, थॉट लेवल पे, दैट यू आर ब्लेसिंग समवन। आप किसी का अच्छा सोच रहे हैं, शुभ चिंतन कर रहे हैं। तो फिर वो जब आप अच्छा कर्मा करते हैं, तो वो रिलेशन, वो दुआएं, भले वो आपको ब्लैक बॉल्स वहां से भेज रहे हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से व्हाइट बॉल्स भेज रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके ब्लैक बॉल्स, जो उनके नेगेटिव थॉट्स है, चीजें, वो आना कम होते होते कॉम्पनसेट हो जाएंगे, और एट द एंड यू बोथ विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। सो अभी आपका जो भी टेम्परामेंट है, जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, आप फील करेंगे कि आप में ज़्यादा पेशेंस, रिश्तों की ज़्यादा समझ, ज़्यादा स्नेह और दया एक दूसरे के प्रति वो इमर्ज होती जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. आपने कभी मैग्नेट देखा है? मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अगर एक मैग्नेट है और अगर आसपास कुछ भी आयरन की चीजें हैं, तो इट विल अट्रैक्ट। सेम वे, जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है, अगर वो पॉजिटिव है, तो यू विल सी द गुड थिंग्स अराउंड यू, यू विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव थिंग्स, यू विल सी द पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग। या जब आप खुश होते हैं, तो आपने रियलाइज किया होगा कि आप छोटी मोटी बातें तो यूं ही भुला देते हैं, किसी ने गलती भी की तो आपका ध्यान नहीं जाता। सेम थिंग हैपन्स विद द ग्रैटिट्यूड। जब आप आभारी होते हैं, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द पर्सन, मान लीजिए, मान लीजिए आपका बॉस है, ठीक है, बिकॉज बॉस इज नॉट अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, सो वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल। तो मान लीजिए आपका बॉस है, तो इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर द बॉस, उन्होंने जॉब दी, उन्होंने जो भी आपके लिए किया, तो
आपको उनका छोटी मोटी गुस्सा, छोटा मोटा गुस्सा, छोटे मोटे इग्नोरेंस, छोटा मोटा, मे बी उन्होंने आपको ग्रीट नहीं किया, आपने उनको ग्रीट किया, उन्होंने आपका सैलरी हाइक नहीं किया, या जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं, जो कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, बहुत माइनर चीज़ें होती, तो आप देखेंगे अब आपका उन पे उधर ध्यान भी नहीं जाता, एंड सडनली ही स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू, और आपके साथ अच्छा बिहेव किया, आपको अच्छी हाइक भी मिली, तो यू विल सी कि उसी रिलेशनशिप में अब जैसे आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ता है, छोटी छोटी चीज़ों पे ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, ये सारी बातें खत्म होती जाती हैं, और अधिकतर बातों पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ, वी कैन ओनली। We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. यस, सो वाइल्डर कहते हैं कि देखिए, जब हम उन्हीं पलों में जीवित हैं, उन्हीं मोमेंट्स में हम लाइफ को फील कर पा रहे हैं, जब हमारा हार्ट कॉन्शियसली अवेयर है फॉर द ट्रेजर्स वी हैव। देखिए, अभी मिक्स है, हमारे को अच्छी चीज़ों की भी याद है, क्या क्या अच्छा है हमारे पास, क्या क्या अच्छा नहीं है, जो नेगेटिव पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं, वो उन चीज़ों की भी हमें यादें हैं। नाउ लाइफ उन्हीं, और देखिए नेगेटिव को भी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द ब्लैक। यस, तो फिर वो शेड्स ऑफ ग्रे हो जाता है, जो लाइट ग्रे से शुरू होके एकदम डार्क ब्लैक तक जाता है। तो वो डिफाइन करता है कि आप में नेगेटिविटी की कितनी इंटेंसिटी है और कितना वो नेगेटिव थॉट है। ऐसे ही वाइट में अगर आप देखें तो कितना चमकीला है, कितना वो शाइनिंग है, उससे उसकी पता चलता है कि कितने पॉजिटिव आपके थॉट्स हैं। तो हम, अगर हमारे विचार उस तरीके के हैं, अनग्रेटफुलनेस के हैं, कंप्लेंट्स के हैं, ब्लेम के हैं, क्रिटिसिज्म के हैं, डिससैटिस्फैक्शन के हैं, तो ये सारी फीलिंग्स आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। दिस इज द डार्कनेस, राइट। और उन पलों में जब आप इन भावनाओं के अधीन हैं, उन पलों में जीवन नहीं है। इज इट ट्रू? बिकॉज उस समय पता नहीं, उन बातों से आप एग्जाइटी फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं, आप डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, पता नहीं आप क्या फील कर रहे हैं। तो उन पलों में विशेष रूप से जीवन नहीं है। लाइफ इज वेन यू आर अवेयर अबाउट द ट्रेजर्स, कि अच्छा मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, अच्छा मेरा ये रिलेशन अच्छा है, इस रिलेशन में ये अच्छा है, अच्छा इनकी ये अच्छी है। तो वेन यू आर कॉन्शियसली अवेयर अबाउट द ट्रेजर्स, द गुड थिंग्स you have, the precious things you have, in those moments you can say okay, I'm alive, I'm happy। ठीक, words are very powerful। Words are very powerful. So, when you complained about any person, you actually harm your life. Yes, It is. देखिए, this is a very powerful statement, words are very powerful। so when you complain about any person, जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कंप्लेन करें, actually you're harming your life। how many of you honestly tell me did the complain? शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैंने भी कभी ना कभी किसी की कंप्लेन जरूर की है, बट यस, नाउ आई एम अवेयर, सो आई डोंट डू इट, या वेरी लेस। और किया भी तो पता अब उसको ब्लेसिंग्स देनी है। तो जब आप दूसरे की कंप्लेन, यस बीना जी, सो ऑनेस्ट ऑफ यू मैडम, बीनल जी, देखिए, कंप्लेन जब हम करते हैं ना, सो डू यू कंप्लेन अबाउट पर्सन और द सर्कमस्टेंसेस? तो जब आप कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, यू आर हार्मिंग योर लाइफ। अभी करेंगे कंप्लेन? मैम, देखिए, लेकिन यस। कंप्लेन करना नहीं चाहते, लेकिन जो अभी सिस्टम में जो चीजें मिलती नहीं है, 4-5 महीने से अटक रही है और हम्म रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो क्या हम्म करें इस केस में? हमें अच्छा नहीं लगता है कंप्लेन करना, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करें? बहुत प्रॉब्लम देखिए, हो रही है उससे। कंप्लेन करने से सॉल्व होगा क्या? कंप्लेन, द थिंग हियर इज मैडम, देखिए, अगर कहीं पे डार्कनेस है, मान लीजिए कोई चीजें नहीं हो रही है, कहीं पे डार्कनेस है, डार्कनेस को आप हटा नहीं सकते,
हमें सोचो ये कमरा ब्लैकआउट कर दिया, मैं इसको अंधेरे को भर के बाहर फेंक दूं बाल्टी से या किसी भी चीज से, आई कांट डू। द ओनली वे इज कि मैं यहाँ पे लाइट जला दूं। जहां भी डार्कनेस है, जिस भी एरिया में जो भी चीजें काम नहीं कर रही हैं, आप वहां पे ग्रैटिट्यूड बढ़ाइए। यस, यस मैडम। यस मैम। एंड आप कंप्लेन का एक एग्जांपल मैं अपना देना चाहती हूँ। हम्म लाइव एग्जांपल। अभी हम्म रिसेंटली मुझे एक जॉब में प्रमोशन मिला है, पैसों का ग्रोथ नहीं हुआ लेकिन मुझे एक डिजिटल लीड का रोल मिला। एंड हम्म अप्रैल से रोल मिला एंड अभी अगस्त आ गया। एंड हम्म मुझे जो भी चीजें चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही है। हम्म एंड लाइक उसकी वजह से मेरा पे आउट और बाकी सारी चीजों में मुझे इम्पैक्ट गिर रहा है। तो ये हम्म मैंने बोलना स्टार्ट किया कि मुझे ये चाहिए चाहिए, बट मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने हम्म मेरे बॉस को, सुपर बॉस को बोला कि मुझे ये चीजें नहीं मिल रही है। तो दे हम्म लिटरली सेड हम लोग आपके कंप्लेन सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। 2-3 बार बोला, बट इफ आई एम नॉट गेटिंग द रिजोल्यूशन हाउ कैन आई डू इट। अभी 2 बंदे को रख लिया एंड अभी 2 बंदे वो ऐसे हैं कि उन लोग अभी षड्यंत्र पूरा रच रहे हैं टू मेक मी हम्म आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे इससे निकलूं। स्टार्ट डूइंग द ग्रैटिट्यूड। पहले आप अपने आप को थोड़ा डिटैच कीजिए, और आपने ये सोचना है कि अब मुझे इन यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करना है। जो चीज़ें बोलने से नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें मे बी अप्रोच करने से नहीं हो रही हैं, वो आपकी ग्रैटिट्यूड से हो जाएंगी। तो स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द बॉस, फॉर द सुपर बॉस, फॉर द colleagues with you, for the project you are right now part of it. Whatever they are doing, you are still a part of that project. So start doing the gratitude for the same, and soon it will take other turn. ठीक है। I'll come to the questions. So there is only one way to come out of it, that is through the positivity, through the gratitude. And that's why this golden thread of the gratitude we all are holding, to go out of all this, um, क्या कहते हैं उसको, रिवर ऑफ पॉइजन्स। यस, एंड कम टू दैट स्टेज जहाँ पे हम अपने सपनों की जिंदगी को जी पाए। सो इट इज योर लाइफ दैट विल सफर। अगर आप कंप्लेन, देखिए कंप्लेन करने से कंप्लेन बढ़ रही है, यस और नो बीनल मैडम? यू मस्ट हैव रियलाइज, जितना हम यस मैम। कंप्लेन कर रहे हैं थ्रू द वर्ड्स और थ्रू द एक्शंस, चाहे हमारे मन में वो टसल है या हम बोल बोल के कंप्लेन कर रहे हैं, आप देखिएगा जितना हम कंप्लेन करते हैं, जिस विषय पे करते, जिस चीज का करते, वो बढ़ती जाती है। लाइट नहीं है, लाइट नहीं, लाइट नहीं, लाइट नहीं आ रही। तो जब आपका आपको क्या चाहिए, वो चाहिए चाहिए जब आप कर रहे हैं, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, स्टिल दैट वॉन्ट इज देयर। तो वो नीड आज भी बनी हुई है, मुझे चाहिए। इफ यू स्टार्ट सेइंग मेरे पास है, तो दैट विल मैनिफेस्ट कि इनके पास है। तो वो हम आपको बाद में अफर्म करना सिखाएंगे। But as of now, the most precious thing is that you need to understand that don't complain. Write it down on your notebook. सभी लिखिए, नो कंप्लेन्स। सो नो कंप्लेन्स। हमें ऐसे जोन में पहुंचना है जहां वी डोंट हैव एनी कंप्लेन्स। चलिए, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी। By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. यस। सो व्हाट हैपेंस इज, जो भी हम सोचते हैं कहते हैं वो हमारे साथ होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारी ही आत्मा सुन रही है ना उन चीजों को।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि वॉट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन यू ब्रिंग टू यू। क्योंकि पहले आप देखिए, हर एक शब्द की अपनी एक एनर्जी है और अपना उस एनर्जी का आप पे अपना एक इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को कहा ये पागल है, अभी उसको तो कुछ हुआ नहीं लेकिन मैंने पागल बोला। जैसे कई बार होता है हम सरकास्टिकली बोल देते हैं, हमारा कोई भाव नहीं है, पर हमने ऐसे मजे मजे में मस्ती में बोल दिया, उसका तो कुछ नहीं हुआ बिकॉज वो उसके पास पहुंचेगा या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हमने बोला तो उस वर्ड का इफेक्ट पहले सबसे पहले किस पे आएगा, बताइए, किस पे आएगा सबसे पहले इफेक्ट? हम पे। हम पे ये इसका इफेक्ट आएगा। इसलिए एक एक शब्द जो हम बोलते हैं हमें बहुत समझ के बोलना है। कई बार हम चलते फिरते कंप्लेन कर देते, मान लीजिए हम नीचे पार्किंग में उतरे, अरे इनने गाड़ी क्यों यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये वॉचमैन अच्छा नहीं है। कई लोग की ना कंप्लेन करने की आदत ही होती है, कुछ नहीं भी होना तो भी वो कंप्लेन ढूंढ लेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अगर एक चीज अच्छी नहीं चल रही उनकी नजर वहीं जाती है। हमारी भी आदत हो गई है फॉल्ट फाइंडिंग की। अरे 10 अच्छी चीजें, मान लीजिए आपने 10 सब्जियां खरीदी, 10 की 10 अच्छी, एक टमाटर खराब आ गया, आपका ध्यान पूरा टमाटर पे है। वेरी सिली एग्जाम्पल बट जस्ट टू मेक इट मोर रिलेटेबल। तो क्यों ना हम, हमारा हमारा खुद का ब्रेन कैसा हो गया है तमो प्रधान, कि हम इस चीज पे ध्यान नहीं जा रहा जो अच्छाइयाँ हैं, बाय डिफॉल्ट हम बुराइयां पिकअप कर रहे हैं। एक आई ऑलवेज फील वेरी मोटिवेटेड कि जो कचड़े वाली गाड़ियां आती हैं, जो कचड़ा वाली बाइयां रहती हैं जो कचड़ा बीनती हैं, आप देखिए वो कचड़े में से भी अच्छी चीज निकाल लेती हैं। और हम तो इंसान हैं, लिटरेट हैं, हमने अ, अच्छा जीवन जिया है, हम क्यों बुराई में से अच्छाई नहीं ढूंढ पाते, अच्छाइयों में से बुराइयां निकाल के बैठ जाते। तो हमें हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण बदलना है। ठीक है, आप अच्छा देखना शुरू कीजिए, उसके प्रति ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, लोगों के प्रति, चीजों के प्रति, तभी तो वो बढ़ेंगी ना। हम कहते हैं हम बहुत कुछ करना, हम कर नहीं पा रहे, अरे अपने अंदर के अंधकार को तो मिटाओ फिर कुछ करना। ये रिलेशन काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर, आपका आपके साथ कैसा रिलेशन है? आई थिंक यू मस्ट बी कंप्लेनिंग अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। कितने लोग खुद से खुद की कंप्लेन करते रहते हैं मन ही मन में, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लेन अबाउट योर सेल्फ? से आई इन द चैट एन ऑनेस्ट आई। हम अपने आप से ही खुश नहीं हैं, ऐसा समझिए। मैं ऐसी कोई, किसी को लगता है मैं मोटी हूँ, किसी को लगता है मैं पतली हूँ, मैं लंबी ज्यादा हूँ, मेरे दांत ऐसे, मेरी आंखें ऐसी, मेरे बाल ऐसे, मेरा वेट ऐसा, मेरी कमर ऐसी। हम अपने आप से ही खुश नहीं हैं, दूसरों से क्या होंगे? ये हैपन्स। स्टॉप कंप्लेनिंग। किसी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं। भगवान ने दुनिया बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे में ज्ञान की कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया कंप्लेन करने का। चलिए ये तो ठीक है, कई लोग तो बैठे बैठे मोदी सरकार से ही कंप्लेन है ना। अब आपने जाके कुछ नहीं करना पॉलिटिक्स का, आपको एबीसीडी भी नहीं पता है, पर ठीक है, हमें मोदी सरकार से भी प्रॉब्लम है, केजरीवाल से भी प्रॉब्लम है, हमें इनसे भी प्रॉब्लम है, तो इसका कोई अंत नहीं है ना। कभी मन में आए तो ग्रेटिट्यूड करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए जितने भी लोग हैं, दिस इज द वेरी रीजन वाई द ग्रेटेस्ट माइंड्स एंड टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टोल्ड अस टू बी ग्रेटफुल। अगर देखिए, अगर आपको अपने सपनों की दुनिया में जाना है, आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने, आपको अच्छी लाइफ जीनी है, कंप्लेंट्स करना बंद आज से। अदरवाइज कंप्लेन, ब्लेमिंग, क्रिटिसिज्म इज द श्योरेस्ट वे टू स्टे इन द प्रॉब्लम। क्या चाहिए, यू चूज।
आपने ऑलरेडी करके देख लिया है. दैट्स वाई वी ऑल आर हियर. व्हाट वाज द रिजल्ट? So they knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. यस, इवन हम खाने की कंप्लेन कर देते हैं, ये ऐसा बना, इसमें दाल में नमक कम है, ये सब्जी में आज ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुई है, ये रोटियां फूली नहीं है. क्या हम उस एक एस्पेक्ट को भूल के इसलिए ग्रेटफुल हो सकते हैं? किसी ने उसको उगाया है, है इतनी मेहनत से, धरती माता का शुक्रिया, फिर किसान का शुक्रिया, फिर वो व्यापारियों का जिन्होंने खरीदा बेचा, ट्रांसपोर्टेशन का, अल्टीमेटली उस शॉपकीपर का जो जहाँ से आपने खरीदा, और फिर घर तक लाने वाले का, एंड देन फिर वो रोटियां बनाने वाले का. सिर्फ इतना सारा ग्रेटफुलनेस हम भूल के एक कंप्लेन करते हैं खाना खाते समय, ये कच्ची रह गई, ये पक्की रह गई. हाउ अनग्रेटफुल वी आर. और इसीलिए, यस मैडम, इसीलिए हमारे शास्त्रों में, धर्मों में, धर्म ग्रंथों में हमें प्रेयर सिखाई गई है. क्यों प्रेयर करते हैं हम? ताकि वो 2 मिनट की प्रेयर में, 1 मिनट की प्रेयर में, 5 मिनट की प्रेयर में आप उसके लिए ईश्वर का और उन सभी लोगों का आभार प्रकट करें. तो इसीलिए हम हमेशा प्रेयर करके खाना हमारे शास्त्रों में सिखाया गया. या कोई मंत्र उच्चारण करके करते हैं, या कोई उसको पानी को चारों तरफ घुमाते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं, कोई गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं, कोई ईश्वर का नाम लेके शुरू करते हैं. ये सभी तरीके इसीलिए बनाए गए ताकि हम कृतज्ञता महसूस कर सकें. What if every person choose to you say, what if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? How would you feel? अगर आपके पास जितने भी लोग हैं जो आपके क्लोज हैं, सभी अगर आपको आके कहें आई लव यू जस्ट द वे यू आर, तुम आप जैसी हो, आप जैसे हो, जो हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू. हाउ वुड यू फील? कैसा लगेगा आपको? बताइए. How you'll feel? Say 10 people, all the close to your heart, come to your home and say I love you the way exactly you are. I don't want to change anything in you. होता है, हम चाहते हैं, यार ये बदल जाए ना, क्यों नहीं बदलता है? ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये आदत छोड़ दे, ये ना करे, वो ना करे. मैंने पहले दिन भी कहा था, आपको सीता जी चाहिए ना, तो आपको भी राम बनना पड़ेगा. आप चाहते हैं कि वो राम बन जाए, तो पहले आप सीता बनिए. यस, हमें किसी में कुछ चेंज नहीं करना है. ये ये मेहनत छोड़िए. हमें किसी में, मैम आप म्यूट पे. या हमें सिर्फ एक व्यक्ति को चेंज करना है, अपने आप को. बहुत कोशिश कर ली, इनको बदले, उनको बदले, उनको बदले, उनको बदले. नो. लिख लीजिए अपनी कॉपियों में, मुझे किसी में कुछ नहीं बदलना है, मुझे सिर्फ अपने आप को बदलना है. And by changing yourself, try and accept the people as they are. जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना हमने सीखना है. तभी लोग आपको भी वैसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं. वो आप उनमें चेंज करना चाहते, वो आप में चेंज करना चाहते. बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो यस, टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस. हाँ जी. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. यस. Even यस. even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you'll see gratitude perform its breathtaking magic
and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. यस। तो आज की मैजिक प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पीपल जस्ट एज ए, मुझे किसी में कुछ नहीं बदलना। ठीक है, पहली बात ये, हमें जो व्यक्ति है या जो लोग हैं हमारे पास जो क्लोज टू द हार्ट है, पीपल हु मैटर्स, तो आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है द वे दे आर। यस। और अगर अभी आपके सारे रिलेशंस अच्छे भी हैं, इफ यू हैव ऑल द गुड, आपके मम्मी से भी अच्छे रिलेशंस है, पापा से भी हैं, हस्बैंड से भी हैं, बच्चों से भी हैं, स्टिल ऐसा नहीं है कि जिनको कुछ ब्रेक डाउन है उन्हीं के लिए है। जिनके अच्छे भी हैं रिलेशंस, उनको भी ग्रैटिट्यूड करना है, तो उन्हीं रिश्तों में और स्वर्ग भर जाएगा, और लाइट आ जाएगी, और ज्यादा उनमें क्या कहेंगे, अच्छी अच्छी चीजें आपको, और एक दूसरे के साथ अच्छा लगेगा। तो दे विल इन, इसमें लिखा हुआ है योर रिलेशनशिप्स इवन इफ दे आर करेंटली गुड, दे विल इंक्रीज विद मोर मैग्निफिसेंस थ्रू दिस प्रैक्टिस, and with everything you find to be grateful for in each person, you will see that the gratitude performs its breathtaking magic, and your relationships will be more stronger, fulfilling and enriching। तो आपने आज क्या करना है, हर एक में ऐसी चीजें फाइंड आउट करनी है जिससे के लिए आप आभारी हैं। मे बी किसी ने आपको आपके बुरे समय में मदद की थी, आप उसके लिए आभारी हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपके इन लॉज ने आपको दिया था या आपके पेरेंट्स ने दिया था, उसके लिए आप उनके आभारी हैं। आप में भी स्कूटी या कार ड्राइव करते हैं, वो आपको जिसने सिखाया, आप उस चीज़ के लिए, आपके ब्रदर ने सिखाया उसके लिए आप आभारी हैं। आपने हर एक में वो चीजें फाइंड आउट करनी है जिनके लिए आप उनके ग्रेटफुल हैं। अभी हम पूरा आगे डिकोड करेंगे कैसे करना है। चूज थ्री ऑफ योर। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स दैट वी हमें खुद से भी जो कंप्लेन्स है वो भी नहीं करनी है फॉर लैकिंग इन समथिंग। यस। वी शुड इम्प्रूव दैट रादर देन कंप्लेनिंग। यस, एंड इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा पूरा शरीर अच्छा है, जस्ट मेरे हाथ में दर्द है। तो क्या होता है, हम सिर्फ वही बोलते रहते हैं, जब मेरे हाथ में दर्द है, दर्द है, दर्द है। लेकिन ये जो 98% बॉडी अच्छी काम कर रही है, इसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते। हमारे हम सब अच्छा कर रहे हैं, बस एक हम में मान लीजिए लेजीनेस है, और उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, उसी की हम कंप्लेन कर रहे हैं। तो पहले अपने आप के लिए भी थैंकफुल। आज आपने सेशन अटेंड किया, थैंक यू कीर्ति, यू डन सो वेल, है ना। आपने अपने आप की तारीफ कीजिए, अपने आप को के लिए ग्रेटफुल होइए। अच्छा, मैंने इतने अच्छे से सेशन अटेंड किया, समझा, मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, थैंक यू कीर्ति। फॉर फॉर योर सेल्फ यू बी ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर माई ब्रेन। तो है ना, जिनको भी आप मानते हैं उनके लिए, उनको आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा ब्रेन दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे रिलेशन दिए, इतना अच्छा मुझे स्वभाव दिया, इतना अच्छी मुझे अंडरस्टैंडिंग दी, इतने अच्छे मुझे इमोशंस दिए। तो आप अपने आप की तारीफ करके अपने आप की जो क्वालिटीज हैं, जो वर्च्यूज हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, उनके लिए आप है ना ग्रेटफुल होना शुरू होइए। तो यू सी कि आपकी अपने से भी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। और जो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको आप अपने आप में भी बदलना चाहते हैं, वो फिर एफर्टलेसली इजीली वो टर्न आउट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कंप्लेनिंग मोड पे हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। यस, चूज थ्री ऑफ योर। Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person और both of you together। or both of you together. Yes, Yes. yes, continue। Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit Mhm. down and think about the things you are the most grateful for about each person.
What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind of hurt. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. यस, तो अभी आप सबको क्या करना है, ब्रिंग द 3 फोटोग्राफ्स। ठीक है, जिन भी 3 रिलेशंस को आप हील करना चाहते हैं, तीनों की फोटोग्राफ निकालिए। चलिए निकालेंगे, लेट्स डू इट टुगेदर एवरीबडी। कैन यू ऑल टर्न अप योर कैमरास सो दैट वी कैन डू इट टुगेदर। किन्हीं भी 3 रिलेशंस को जिनको आप हील करना चाहते हैं, ब्रिंग। और फोटो कैसी होनी चाहिए, देर शुड बी 2 पीपल मैक्सिमम। तो इधर यू हैव सिंगल फोटोग्राफ, अगर अगर नहीं है ग्रुप फोटो है तो आप उसको जूम करके मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके उसको भी एज अ फोटो यूज कर सकते हैं। तो आइदर इट शुड बी अ सिंगल फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन और मैक्सिमम यू एंड दैट पर्सन टुगेदर। यस, so then sit down and think of the things you are most grateful for। अब आपने सोचना है, think of the things you are most grateful। तो आप सोचिए आप उनके लिए कब कब ग्रेटफुल हैं। मे बी अभी आपका ब्रेकआउट हो गया, ये किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी के हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, किड्स हैं, किन से आपको अपना रिलेशन हील करना है। टेक देयर, ब्रिंग देयर फोटोग्राफ। रेडी एवरीवन, टाइम लगेगा बताइए, देन विल स्टार्ट राइटिंग द ग्रैटिट्यूड। Everybody ready with the photograph? Boss, Binal ji, bring the photograph of your boss. It's easy to get photograph of the boss. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you with a pen and notebook. आपको क्या करना है, उनका फोटोग्राफ निकालिए। यस, एंड थिंक ऑफ द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। अभी नॉन जजमेंटल रहिए, जज जज मत कीजिए, उनने ऐसा किया कुछ भी नहीं। जस्ट हैव द फोटोग्राफ, हैव अ पेन एंड नोटबुक और ऑन योर कंप्यूटर चूज द 5 थिंग्स यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर। अभी हम तीनों रिलेशंस के लिए उनकी फोटो देखते हुए 5 चीजें लिखेंगे जिनके लिए हम उनके ग्रेटफुल हैं। Can we all do it together? Just type a big yes in the chat. Everybody. And look at the photograph of the person as you make the list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then write that you are grateful for. What you are grateful for. For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. For example, I want to write the gratitude for my mom. ठीक है, तो आई वुड से थैंक यू मम्मी। So the person's name, yes, start with the thank you, address the person by their name, and then write what you are grateful for. Thank you, mummy, for thank you, mummy, for you can also add Hindi, जैसे I'm thankful to mummy because you can also write it this way, I'm thankful to mummy. I write it like this always. I'm thankful to mummy because आपने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। I'm thankful to mummy because
आप अपना सोचिए, आप जिनके लिए लिख रहे हैं, एंड ब्रिंग द फोटोग्राफ। यू शुड हैव अ फोटोग्राफ। उनको देखते हुए, याद करते हुए लिखिए। थैंक यू। So like me having a photograph of my mom, and I'm thankful to मम्मी because आपने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। I'm thankful to मम्मी because because आप हमेशा मेरे लिए मालपुए बनाते हैं जब भी हम घर आते हैं। थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप मेरे साथ शॉपिंग पे गए थे। वी स्पेंट क्वालिटी टाइम टुगेदर। आई एम थैंकफुल टू मम्मी एंड लुक इन टू द पर्सन's आई। सो लुक इन टू द पर्सन's आई, और जैसे आप उनसे बातें कर रहे हैं, तो आई एम थैंकफुल टू मम्मी ब्रिंग अ स्माइल बिकॉज आप मुझे रोज फोन करते हैं और पूछते हैं खाना खाया कि नहीं, क्या खाया। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज thank you, thank you. And at the end, after writing five, write thank you, thank you, thank you, and put a smiley. कितनों ने लिखा से आए? 5 people का करना। यस, यू कैन डू 5 people। अभी आप अभी आप 3 का कर लीजिए सेशन पे, या 1 का कर लीजिए, बाकी आपका होमवर्क है। कभी उन्होंने आपकी तारीफ की थी, कभी वो आपके सपोर्ट में खड़े रहे थे, कभी उन्होंने आप पे भरोसा जताया था, कभी उन्होंने आपके लिए गिफ्ट्स लाए थे, कभी उन्होंने आपको फोन करके मोटिवेट किया। ढूंढिए जो भी रिलेशन, ऐसा तो कोई दुनिया में रिलेशन नहीं जिसमें कुछ अच्छा ना हुआ। अगर ऐसा होता तो वो रिलेशन ही नहीं होता। ढूंढिए जो भी रिलेशन है उसमें अच्छाइयाँ ढूंढिए आज।
So I'm writing another gratitude. Bring this kind of a spiral notebook. It is easier to tear off also. I'm thankful to because ठीक है. Is the format clear to everybody? How are you feeling? Even if you wrote for just one person, how are you feeling? यस. तो बाकी आई होप आपने एक के लिए लिख लिया होगा. बाकी सभी के लिए लिखना ये आपका होमवर्क है. सो टेल मी हाउ आर यू फीलिंग नाउ. सो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द इवनिंग टाइम ऑल्सो. आज छुट्टी है. सो विल कनेक्ट इन द इवनिंग ऑल्सो. तो इवनिंग के लिए यू गॉट एन ओवरव्यू. इवनिंग में आप सभी प्रॉपर तीनों की फोटोग्राफ लेके बैठेंगे. सिंस आई मेड द एक्सप्लेनेशन इन दिस सेशन, सो आई विल ओनली टेक यू इनटू द प्रैक्टिस. तो इवनिंग सेशन में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे. क्लियर टू एवरीबॉडी? And after writing it, how are you feeling? Please share that in the group so that we can have more people joining the classes. Yes? Everybody clear? So now we'll continue in the evening. Yeah, please do share your experiences in the group. Thank you, Kirti ma'am. I wrote gratitude today after such a long time. I was doing this practice, but yet not written anytime. So I just did today for my super boss. For my boss, I'm little bit agitated, but I'll do it anyhow. So, and for Thank my mom also, I have written. you. So means a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you. I'll see you all in the evening. And just one question. Mhm. If will this gratitude take away all the problems like the way it is right now, which I explained you at my office and all that stuff? यस इट विल चेंज मैडम. ऐसी ऐसी चीजें भी हुई कि लोगों के डिवोर्स होते होते हुए बच गए जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड. तो दिस इज सच अ पावरफुल थिंग. जब तक आप उसको उसकी पावर इतनी ज्यादा है. जो ये आप उनकी अच्छाइयाँ लिख रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं. दीज आर सच पावरफुल प्रैक्टिसेस जिससे कितनी भी कोई भी सिचुएशन में रिलेशन यू विल सी देम ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकली. तो जस्ट हैव द ट्रस्ट एंड कंटिन्यू योर प्रैक्टिसेस. बोलिए मत, कुछ भी मत करिए. जस्ट डू योर प्रैक्टिस. जस्ट पे योर ग्रैटिट्यूड एंड विद इन अ फ्यू डेज यू विल सी कि दे आर अप्रोचिंग यू और वट एवर वे यूनिवर्स चूजेस बट इट विल बी सॉर्टेड. रीति मैडम, it's okay. Don't think of these things. Start paying gratitude for him. All the time he supported you or he was there for you, he cared for you. Just start paying gratitude for those things and you'll see he'll start responding. He'll start calling you back or he'll start talking to you. So don't worry about the present situation. Jo bhi situation hai, it's okay. Start gratitude and things will start turning. Yes, madam? Yeah.
Okay, so don't worry because worry is also a negative feeling again. जब हम चिंता करते हैं ना तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. हमने हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है तभी चीजें होंगी. So start paying gratitude, start feeling good about the person, the things, your dreams, and you'll see things changing fast. Okay? और कुछ सवाल है किन्हों का? गीता जी, your relationship with God, start paying gratitude for the God, for giving us this gift of life, for giving us eyes, for giving us good relations, for giving us the healthy brain. We are grateful for the God every time. So I have my meeting scheduled. So I'll catch you all in the evening now. Yes. Bye bye. Take care. Yeah.